Assalamu alaikum and welcome to Unlock Pharma with Dr. Umair. In continuation of previous lecture, today we will discuss different types of fluid. There are basically two types of fluids. One is Newtonian fluid and the other one is non-Newtonian fluid. So what is Newtonian fluid and non-Newtonian fluid? We will discuss both these type of fluids in detail. First we will discuss Newtonian fluid. What is Newtonian fluid? Newtonian fluid is actually that type of a fluid which obeys Newton law of flow. What does Newton law of flow says? It says that the shear rate will be directly proportional to shear stress. Shear rate directly proportional to shear stress. It means that the amount of stress we applied on any material, that sort of rate or that sort of movement will be produced by that object. If we applied more force, more rate will be produced. If we applied less force, less movement or less flow will occur in that type of a fluid. So this type of fluid which obeys Newton law of flow is known as Newtonian fluid. Now if we draw viscosity versus shear rate, it will give us a straight line. This means that there is no such resistance of force to that fluid and it shows us constant velocity or the fluid move with a constant velocity. अब अगर इसमें हमारे साथ कोई रेजिस्टेंस आती या कोई चेंजेस उसकी वेलोसिटी में आती तो हम कहते कि ये फ्लूइड हमारे पास सिंपल फ्लूइड नहीं है, जैसा कि हमारे पास है वाटर. जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे वाटर पे उतना ही उसमें हमारे पास उसमें मोशन आएगी, मूवमेंट आएगी. सो ऐसे फ्लूइड को हम कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, जो कि हमारे पास स्ट्रेट या कांस्टेंट रेट हमारे पास प्रोड्यूस करेगा. द अदर टाइप ऑफ अ फ्लूइड इज नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड. Non-Newtonian fluid is actually that type of a fluid which deviates from Newton law of flow, which is shear rate is directly proportional to shear stress. In non-Newtonian fluid, if we applied force on any material or any fluid, that doesn't mean that the same amount of motion or flow will occur in that fluid. There will be some resistance offered to that fluid. Non-Newtonian fluid is applicable for ointment, such as ointment or emulsions. We know that emulsions and ointment are not simple fluid. So non-Newtonian fluid is always applicable to suspension, ointment, emulsions in which there is aggregation or there offers some sort of resistance. So one is Newtonian and the other one is non-Newtonian. Now there are different types of non-Newtonian fluid. We will discuss all these types of non-Newtonian fluid in detail and with their graphical representation, that how these different type of fluids behave. So first we will discuss plastic fluid. It's also known as Bingham flow. Plastic fluid is also known as Bingham flow. Now what happens in plastic flow या plastic fluid? जब कभी भी हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो नॉर्मली हमारे जहन में होता है कि उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट आएगी, लेकिन जब हम नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड या प्लास्टिक फ्लूइड की बात करते हैं तो प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होता है,
कि जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली हमारे पास उसमें कोई मूवमेंट या कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएंगी। इसकी मिसाल हम लेते हैं कि कोई सा आयरन रॉड हम लेते हैं, तो आयरन रॉड पे क्या होता है कि हम उस पे उसको बेंड करने के लिए उस पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। इनिशियली जब हम उस आयरन रॉड पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो इन द बिगिनिंग उसमें कोई भी चेंज या कोई डिफॉर्मेशन नहीं आती, लेकिन जब हम जोर एक स्पेसिफिक हद तक लगा लेते हैं तो फिर वो आयरन रॉड बेंड होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसमें बेंडिंग आ जाती है, एक्चुअली वी कॉल दैट स्पेसिफिक पॉइंट इज yield point. Yield point. I will explain this very specific point with the help of a diagram or a graph. Let's suppose we have a substance upon which force is applied. Initially उसमें क्या होगा कि यहां से उसमें हमने फोर्स अप्लाई किया हुआ है, फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है लेकिन कोई चेंज उसमें नहीं आ रहा, लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचने के बाद उसमें चेंज आएगा। यहां तक कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये वाला, जहां पर हमारे पास चेंज आना स्टार्ट हो जाता है, तो इस पॉइंट को हम एक्चुअली कहते हैं यील्ड पॉइंट। अगर हमारे पास यील्ड पॉइंट नहीं आएगा तो हमारे पास डिफॉर्मेशन नहीं होगी। प्लास्टिक फ्लूइड में इनिशियली हम यील्ड पॉइंट तक पहुंचेंगे, यील्ड पॉइंट तक पहुंचने के बाद ही हमारे पास डिफॉर्मेशन आएगी। हमें पता है कि हमने इसको, जो फ्लूइड है वो सिंपल फ्लूइड नहीं है, सस्पेंशन इमल्शन, उसके लिए हम यूज करते हैं। नॉर्मली अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्लक्युलेटेड सिस्टम से। उससे हम किस तरह कर सकते हैं? लेट्स सपोज वी हैव फ्लक्युलेटेड सिस्टम, ये हमारे पास फ्लक्यूल्स मौजूद हैं, ये फ्लक्यूल्स हमारे पास मौजूद है किसी भी सिस्टम में। क्या होता है कि यहां से हम फोर्स अप्लाई करते हैं, क्या होगा? फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि उसमें डिफॉर्मेशन आ जाए, सही है। फोर्स अप्लाई करेंगे लेकिन कोई चेंज नहीं आएगा जब तक हम यील्ड पॉइंट को अचीव नहीं करेंगे। जब इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगने के बाद हम यील्ड पॉइंट तक पहुंचेंगे। जब यील्ड पॉइंट आएगा तो ये जो एग्रीगेट बने हुए हैं ये सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट होंगे तो हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल हमारे पास आ जाएगा। मींस के सस्पेंशन में हमारे पास डिस्पर्शन हो जाएगी। जो फ्लक्यूल्स बने थे, ये जो फ्लक्यूल्स है हमारे पास, ये जो फ्लक्यूल्स थे इसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, ये सेपरेशन इसकी हो जाएगी और इजीली ये डिस्पर्स हो जाएंगी सिस्टम में। तो यील्ड पॉइंट का होना लाजमी है हमारे पास प्लास्टिक फ्लूइड में। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि जो सिस्टम होगा वो स्मूथली वर्क कर जाएगा। अगर हम इसकी विस्कोसिटी को देखना चाहें तो यहां से भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या होता है। देखिए, अगर हमारे पास एग्रीगेट बने हुए हैं तो इट मींस दैट दिस सिस्टम इज विस्कस, दिस सिस्टम विल हैव हाई विस्कोसिटी। लेकिन जैसे हम यील्ड पॉइंट तक पहुंचेंगे तो उसके बाद सेपरेशन होगी। जब सेपरेशन होगी तो उसके साथ क्या होगा, आपके पास जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो इनहांस हो जाएगी, जो हमें शो कर रहा है कि हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज कर गई। तो इसको हम इस तरह अगर एक्सप्लेन करना चाहे, ये हमारे पास एक ग्राफ है, सही है। अगर हम शेयर स्ट्रेस और ये हमारे पास होगी विस्कोसिटी,
तो जितना हम उस पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जितना शेयर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, इनिशियल हमारे पास विस्कोसिटी यहां पर है, सही है। तो जितना हमारे पास शेयर स्ट्रेस इंक्रीज होता जाएगा, उतनी ही हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी, लेस विस्कस की तरफ जाएगा सिस्टम, जो कि यहां से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कैलकुलेशन में क्या होता है हमारे पास, सही है। तो यह था हमारे पास ओवरऑल प्लास्टिक फ्लूइड और बिंगम फ्लूइड। नेक्स्ट है हमारे पास स्यूडोप्लास्टिक फ्लो। स्यूडोप्लास्टिक फ्लो में क्या होता है हमारे पास, इसको हम कहते हैं शेयर थिनिंग। शेयर थिनिंग सिस्टम। शेयर थिनिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास विस्कोसिटी पहले ज्यादा होगी, लेकिन जितना उस पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई होगा तो उसके साथ उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। तो प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होगा, हम जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतनी हमारे पास क्या होगा, शेयर रेट इंक्रीज होता जाएगा। क्यों इंक्रीज होता जाएगा, कि हमारे पास विस्कोसिटी कम होती जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लास्टिक फ्लूइड जो है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड जो है हमारे पास, वो शेयर थिनिंग सिस्टम है। इसको अगर हम विस्कोसिटी के साथ इसकी ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ भी सेम इसी तरह आएगा, जिस तरह ये कि विस्कोसिटी और शेयर स्ट्रेस, शेयर थिनिंग सिस्टम है। तो जैसे हम स्ट्रेस को एनहांस करेंगे, जैसे स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, उतनी ही आपके पास विस्कोसिटी क्या होगी, विस्कोसिटी डिक्रीज होती जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास डायलेटेंट फ्लो। डायलेटेंट फ्लो, इसको हम कहते हैं शेयर थिकनिंग सिस्टम। शेयर थिकनिंग सिस्टम। शेयर थिकनिंग सिस्टम का मतलब क्या है कि जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जितना हम फोर्स अप्लाई करेंगे, उतनी हमारे पास उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। वहां पर क्या था इन दोनों में कि हम विस्कोसिटी डिक्रीज होती थी, लेकिन प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक में जो बेसिक पॉइंट है जिसको आपने याद रखना है, वो ये है कि प्लास्टिक फ्लूइड में हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो है ये वाला यील्ड पॉइंट, जबकि स्यूडो प्लास्टिक में आपके पास यील्ड पॉइंट नहीं होता। आप फोर्स लगाते हैं, आपके पास डिफॉर्मेशन होती है और विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक फ्लूइड में क्या होगा कि पहले आपने यील्ड पॉइंट तक पहुंचना होगा, जब यील्ड पॉइंट तक पहुंचेंगे उसके बाद आपके साथ डिफॉर्मेशन होगी और आपके पास विस्कोसिटी डिक्रीज होगी। विस्कोसिटी डिक्रीज दोनों में होंगी, लेकिन बेसिक पॉइंट यील्ड पॉइंट का है। ये बात याद रखनी है आपने कि द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लास्टिक एंड स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड इज इन प्लास्टिक फ्लूइड वी विल रीच टू द यील्ड पॉइंट, while there is no such yield point involved in pseudoplastic flow. Now what is dilatant flow? In dilatant flow the viscosity will increase by applying stress. जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उतनी हमारे पास उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो इस वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास जो डायलेटेंट फ्लो है वो शेयर थिकनिंग सिस्टम है, उसमें विस्कोसिटी इंक्रीज होगी और रेट कम होता जाएगा। अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहे तो हमारे पास इस तरह आएगा, ये हमारे पास विस्कोसिटी होगी, ये शेयर स्ट्रेस होगा। जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, जितना स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, इनिशियली आपके पास क्या होगा, विस्कोसिटी लो पे होगी, लो विस्कस होगा। जब विस्कोसिटी लो होगी, स्ट्रेस अप्लाई करेंगे। स्ट्रेस हम किस तरह अप्लाई करें, एजिटेशन कर सकते हैं, हम स्टेयर कर सकते हैं, क्विकली स्टेयरिंग करेंगे तो एनर्जी उसको मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा कि आपके पास इनिशियली क्या होता है कि आपके पास सस्पेंशन होता है। सस्पेंशन में क्या होता है, ये हमारे पास सस्पेंशन है, इसमें पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्पर्स हैं। लेकिन जब हम इसको छोड़ेंगे घंटे दो के लिए, कुछ टाइम के लिए, तो पार्टिकल नीचे एग्रीगेशन बना लेंगे, सही है। अब एग्रीगेशन जब बन गया तो इसके ऊपर व्हीकल ऊपर आ जाएगा, फ्लूइड ऊपर आ जाएगा। लेकिन जब हम इसको एजिटेट करेंगे तो इस फ्लूइड को एकोमोडेट करने के लिए यहां पर स्पेस कम हो जाएगा।
जब कम हो जाएगा तो आपके पास जो कंसिस्टेंसी होगी या जो बिहेवियर होगा फ्लूइड का वो क्या हो जाएगा, वो जेली लाइक हो जाएगा। जब हम इसको स्टेयर करेंगे फ्लूइड एकमुलेशन कम होगी, हमारे पास फ्लूइड की या व्हीकल की सप्लाई कम होगी तो हमारे पास जेली लाइक बिहेवियर आएगा। जब जेली लाइक बिहेवियर आएगा इसका मतलब है कि इस सिस्टम की जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज कर गई, शेयर रेट उसका कम हो गया। तो अगर हम इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या होगा, जितना हम स्ट्रेस को अप्लाई करेंगे उतनी हमारे पास विस्कोसिटी इसकी इंक्रीज होती जाएगी। जितना हम स्ट्रेस अप्लाई करेंगे विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन डायलेटेंट फ्लो इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है कि अगर हमने इसको एजिटेट कर दिया, एकमुलेशन के लिए एक स्पेस कम है फ्लूइड की, जब हम इसको छोड़ेंगे इस तरह अपनी हालत पे स्टेबल छोड़ देंगे तो क्या होगा, जो फ्लूइड है जिस जेली विल बिहेव लाइक अ फ्लूइड, तो इसकी जो विस्कोसिटी है वो कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम इसको दोबारा स्टेयर करेंगे, एनर्जी देंगे उसको, तो एकमुलेशन के लिए स्पेस कम होगा। जब स्पेस कम होगा इसका मतलब है कि जेली लाइक बिहेवियर शो करेगा, और जेली लाइक बिहेवियर शो करने का मतलब है कि हमारे पास जो शेयर रेट है वो कम हो जाएगा, जो कि इंडिकेशन है हमारे पास सिस्टम की विस्कस होने का। सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ फ्लूइड। Hope you understand the very basic of this topic. If you want to take a screenshot, you may take it from the board. For more videos, subscribe Unlock Pharma with Dr. Umair. Thank you.